تشریف لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پر میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ امریکہ میں خصوصاً اقوام متحدہ میں مشن کشمیر کو پورا کرنے کے بعد وزیر اعظم لندن پہنچے ہیں اور اس وقت لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پر اب سے کچھ دیر تک میڈیا سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ میں ابھی سفیر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس جگہ سے شفٹ کر کے یہاں آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ مجھے کوئی جواب صحیح مل نہیں سکا، لیکن یہ 1 گھنٹہ آپ نے سفر کیا وہاں سے یہاں شہر سے، آپ کے بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ تو جو میری گفتگو ہے وہ تو آپ نے جنرل اسمبلی کی جو میری تقریر تھی اس میں آپ نے سن لی ہوگی، جو باتیں کرنی تھی میں نے اس میں کہہ دی ہیں۔ اور کل نیو یارک میں بھی کچھ ہماری پریس ٹاک ہوئی تھی، میڈیا کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں بھی کچھ باتیں میں نے کہہ دی ہیں۔ تو اب آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں، اگر آپ نے سب چیزیں سنی ہیں، سب باتیں سنی ہیں، تو پھر ممکن آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں یا کوئی آپ کسی چیز کی وضاحت چاہتے ہوں تو میں حاضر ہوں۔ بالکل سر، اندر جاوید دنیا ٹی وی سے آپ نے جنرل اسمبلی میں جو خطاب کیا اس کے بعد خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کی طرف سے رویہ کافی جارحانہ ہو گیا ہے، ان کے یہ جنگ کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا رویہ عالمی امن کے لیے کتنا خطرناک، اور خاص طور پہ جو آپ کی اسپیچ رہی اس کے بعد کشمیری برادری اور خاص طور پہ کشمیریوں میں کافی حوصلہ بھی بڑھا ہے، اس 2 چیزیں جو ہیں یہ انٹرنیشنلی اس کے امپلیکیشن جو انڈیا کر رہا ہے اس کے حوالے سے کائنڈلی آپ بتانا چاہیں گے؟ میں پاکستان کی بات کروں گا۔ پاکستان نے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے، جو ظلم ڈھایا ہے نہتے کشمیریوں پر ہندوستان کی سیکورٹی فورسز نے کشمیر میں، وہ میرا خیال ہے کہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا نے بھی اس کو دیکھا ہے، اور جس طرح سے 108 بندوں کو اب تک شہید کیا گیا ہے، یہ 108 کی جو فگر ہے یہ کوئی 4-5 دن پرانی ہے۔ اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ مزید اضافہ ہوا تو آپ کو بہتر معلوم ہوگا۔ اور پھر 150 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو ان کو بلائنڈ کر دیا گیا ہے، اور پھر کوئی کچھ ہزار ہیں جو زخمی ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بربریت نہیں تو پھر کیا ہے، اور اس کی بات تو وہ کرتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے اتنی بربریت اور ظلم جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، اور اس کا اب ایک منطقی نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو اگر وہاں پہ کشمیر میں جو حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں وہاں فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، تو ایک کشمیریوں کا بھی ایک ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو ایک دم جو ہے نا وہ الزام دھر دینا 12 گھنٹوں کے اندر کہ اس کا پاکستان ذمہ دار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور کسی طور پہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھدار جو ذہن ہے وہ اس بات کو قبول ہی نہیں کرتے کہ ادھر واقعہ ہوا ہے، ادھر آپ اپنا الزام دے رہے ہیں پاکستان پہ۔ بھائی پہلے انکوائری تو ہونے دو، انویسٹیگیشن کراؤ، اور پھر ان چیزوں کی انکوائری بھی کرواؤ کہ جس سے 108 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور پھر کیا وہ ان کے دل زخموں سے چور نہیں ہیں، ان کے جو ہیں وہ لوڈ ونز جو ہیں، جو ان کے اپنا جو قریبی عزیز رشتہ دار، ماں باپ، بیٹے، بھائی بہنیں جو ہیں، ان کے دلوں کے اندر اس کا غم و غصہ نہیں ہے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ہندوستان کو کوئی بھی الزام لگانے سے پہلے اپنے اس کردار کی طرف بھی ضرور نظر ڈالنی چاہیے۔ جناب وزیر اعظم صاحب، احمد علی سید جی بھائی سے ہوں میں، آپ کی جو تقریر تھی کشمیر کا جو آپ نے موقف وہاں پہ بیان کیا اس کی اوور بہت زیادہ تعریف ہو رہی ہے، مگر ایک چیز یہ کہ آپ کی تقریر میں انڈیا جو پاکستان میں مسائل پیدا کر رہا ہے، خصوصی طور پر بلوچستان میں انہوں نے جو پاکستان کے لیے پرابلم بنائے ہیں اس کا ذکر اتنا نہیں تھا جس کا میڈیا میں بھی کئی جگہ پہ تو اس بارے میں آپ کیا؟ ذکر موجود ہے اور اس سے پہلے بھی ذکر ہوتا رہا ہے۔ اب اقوام متحدہ کی تقریر میں
जो एक फिक्स्ड एक वक्त होता है, टाइम होता है, उसमें अब जितनी बातें कही जा सकती हैं उतनी ही कही जा सकती हैं, उससे ज़्यादा फिर करना मुनासिब नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी ज़रूरी बातें हैं उसमें कह दी गई हैं, और पाकिस्तान ने यानी कि दुनिया वहाँ बैठी होती है, दुनिया के सरबराह बैठे होते हैं, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, सब ने बातों को सुना है और ये हर जहन में ये बात रजिस्टर हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल हर बात जो है वो वहाँ पर उनको पहुँचाएगी। और फिर बलूचिस्तान का तो एकदम कोई शोशा छोड़ा गया है जिसको कोई नहीं मानता, और ख़ुद भी अपना अमेरिका ने भी ये बात कुछ दिन पहले कही है कि हम इसके बारे में इसके बारे में हम इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। नसीम सिद्दीकी, एक्सप्रेस न्यूज़ है। सर, जबकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के बादल मंडरा रहे हैं, उस वक्त ये जो राइवेंड में धरना होने जा रहा है 30 सितंबर में, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई, हम तो अपना मुल्क और पाकिस्तान के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने के लिए फुर्सत ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो दिन है कि जब पूरी कौम को एक होकर इस सारे महाज पे खड़े होके मुल्क को मिल्लत के लिए काम करना चाहिए। और ये ऐसा कोई वक्त नहीं जिसको मैं समझता हूँ किसी और काम के लिए ज़ाया किया जाए। आप सारा मैनेज कराएं ना आप। सर, आप यहाँ कैंप के दौरान क्या बरतानिया को भी एतमाद में लेंगे भारत? मैं अभी तो 3 दिन पहले मेरी प्राइम मिनिस्टर यूके से मुलाकात हुई है। उनके साथ बहुत तफसील के साथ सारी गुफ्तगू हुई है हमारी उनसे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुलाकात जो उनसे वहाँ पे हुई वो मैं तो उससे मुतमईन हूँ। जनाब वारी साहब, थैंक यू सर। 2 छोटे पॉइंट हैं जो मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स हैं, उसमें लगता है कि भारत जो है वो इलाकाई जो दूसरे ममालिक हैं, छोटे ममालिक, उन पर प्रेशर डाल रहा है कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग है सार्क की इस्लामाबाद में, उसमें वो शिरकत ना करें। आप ये समझते हैं कि ये हिंदुस्तान खुद कोशिश कर रहा है सार्क को ख़त्म करने की? और सेकेंडली, ये जो हमने डिस्प्ले देखा है पाकिस्तान के अंदर, जो लोग उसको न्यूक्लियर ब्रेकमैनशिप कह रहे हैं कि जहाज उतर रहे हैं मोटरवेज पे, और जो है जो सारी तैयारी दिखाई गई है, ये ज़रूरी थी? मैं ये अभी इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। सार्क का आपने जो सवाल पूछा है, और मैं ये समझता हूँ कि सार्क जो बायलैटरल इश्यूज से ऊपर है, हट के है, उस पर बायलैटरल जो मामलात हैं वो डिस्कस नहीं होते, उसके परव्यू में नहीं आते। तो मेरा ये ख्याल है कि सार्क के हवाले से हम तो तैयारी कर रहे हैं, और नवंबर में सार्क की समिट होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सार्क के जितने भी मेंबर्स हैं इंशाल्लाह उसमें वो आएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आपने अक्सर ओवरसीज की वेलफेयर के लिए इनके मसाइल को ख़त्म करने के लिए फौरी एक्शन लेने की बात की है। मैं यहाँ से मस्जिद न्यूज़ अखबार पब्लिश कर रहा हूँ, तो मेरे मस्जिद न्यूज़ के ऑफिस के नेबर ने हमारे दरवाजे के आगे नाजायज़ दीवार खड़ी करके दरवाज़ा बंद कर दिया है, और हाई कमीशन में कंप्लेंट दर्ज की थी, पूरा साल हो गया। आज ही जवाब मिला कि वो लाहौर से जो जवाब आया कि इस पर हम कोई तसल्ली बख्श अभी कानूनी एक्शन ले। कहाँ है आपका जो? लाहौर मस्जिद वजीर का मेरे नेबर में है। पाकिस्तान क्लाथ मार्केट नाजायज़ प्लाजे, कुमा कसाई वगैरह वो सारे बना रहे हैं। आप अपना आप मुझे अगर आप देंगे तो मैं इसके बारे में पता करूँगा। मैं जनाब, मेरा नाम शिराज खान है, मैं ब्यूरो चीफ हूँ सच टीवी यूके का, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जो आपने कश्मीर के हवाले से मौक़िफ़ अख्तियार किया, बिला मुबालगा उसकी हर जगह पे ज़राई मिल रही है, और कश्मीरी जो ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं उनको भी बड़ा हौसला मिला है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, एक वक्त हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि कश्मीर के अंदर लाशें गिरें, वहाँ कर्फ्यू लगे, इंडिया ज़्यादती करे, और फिर हमारा जो सफारती अमल है, जो इंटरनेशनली जो हमारी डिप्लोमेसी है वो फंक्शन करना शुरू होती है? ये क्यों नहीं एक कंटिन्यूसली प्रोसेस कंटिन्यूसली होता है। और जब भी हिंदुस्तान के साथ बातचीत के बारे में कोई गुफ्तगू होती है तो सबसे पहले पाकिस्तान
की यही डिमांड होती है कि हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करेंगे और इस मसले को हल करने के लिए हमें बैठना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि इस मसले को हल किए बगैर इस खित्ते में दायमी अमन जो है वो कायम करना बड़ा मुश्किल है। तो ये मेरा ख्याल है कि आपका जो गुफ्तगू है वो दुरुस्त नहीं है, ये हर वक्त रहती है, हमतन की बात रहती है। मियां साहब, फारूक शाह, एक मिनट, फारूक शाह डॉन टीवी से। जी शाह साहब। मियां साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में एक शाइस्तगी की सियासत की बुनियाद रखी गई थी। इस वक्त धरने की आड़ में दोनों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और पीटीआई की तरफ से एक ऐसी कैफियत फैलाई जा रही है मीडिया में जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इंतशार और कोई इनकलाब आने वाला है। तो क्या आप अपने वर्करों को या अपने कारकुनों को इस सिलसिले में को हदायत करेंगे, क्योंकि एक तरफ से लाठियां दिखाई जा रही हैं, दूसरी तरफ से बल्ले दिखाए जा रहे हैं, चूड़ियों के तोहफे भेजे जा रहे हैं। ये चीज जो है वो पाकिस्तान में सियासत ऐसी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी जाने का प्रोग्राम बन जाता है और दूसरे लोगों के घर के सामने आपकी रियासती के गाह के बाहर जो है वो धरना दिया गया और मुजाहरा किया गया, फिर मुस्लिम लीग नून वाले उधर मुजाहरा करते हैं, तो पाकिस्तान बहुत बदनाम होता है इस वजह से। जो शाह साहब आप फरमा रहे हैं, आप बजा फरमा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब ने बयान दे दिया है, उन्होंने कह दिया है, और हमारी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम कारकुनों को ये हदायत की गई है कि वो बिल्कुल जो है वो किसी धरने के रास्ते में ना आए और उससे मुकम्मल इज्तनाब करें। और पार्टी की तरफ से ये हदायत जारी की गई है कि कोई भी वहाँ पे धरने में रुकावट डालने की कोशिश ना करे, और किसी को आमने सामने भी आने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो बिल्कुल ये वाज़ेह पैगाम दिया है अपने कारकुनों को, और इंशाल्लाह हमारे कारकुन जो हैं वो पार्टी क़यादत की हदायत पे 100% अमल करते हैं। जी, वज़ीर-ए-आज़म वजाहत अली खान फ्रॉम रोज़नामा खबरें। अब जिस तरह के पाकिस्तान को बाज़ बैरूनी ताक़तों से खतरात हैं, इस तरह अंदरूनी तौर पर भी कुछ खतरात हैं। हाल ही में अल्ताफ़ हुसैन को स्टेट के बाज़ अदारों ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो गद्दार है, उन्होंने पाकिस्तान की बातें की हैं। मेरा ख्याल अगर आज तो मेरे यूएनओ और बाकी मामलात पे ही अगर मरकूज रखी जाए तो ज़्यादा मुनासिब। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो मुलाकातें हुई थी बरतानी वज़ीर आज़म से, यूएन के जनरल सेक्रेटरी से, उस बारे में बताइए। आपकी जो मुलाकातें बहुत मुबारक के मुस्तहिक हैं आप कि जो तकरीर आपने की यूनाइटेड स्टेट में, माशाल्लाह वो काबिल तहसीन है। साथ आपको एक और मुबारकबाद देना चाहूँगा आज कि जो आर्मी चीफ हैं बरतानिया के, उन्होंने समा से बात करते हुए पाकिस्तान आर्मी की और हमारे आर्मी चीफ की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, और तारीफ की है कि जिस तरह पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान में जंग की है वो काबिल तारीफ है। क्या इस सारी चीज़ को मद्देनजर रख के मुस्तकबिल में क्या हम ये सोच सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर की मुद्दत मुलाजमत को तोसी दी जा सके? कोई और सवाल? प्राइम मिनिस्टर, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये है कि एक आपके जो है कमिश्नर हैं यहाँ पे यूके में, केरी डिप्लोमेट हैं, इनके आने से बहुत सारी तब्दीली आई है, मुझे अप्रिशिएट दे, हर लिहाज से तब्दीली आई है, ठीक काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप इंडिया की जो लॉबी है बड़ी सरगर्म है यहाँ पे मीडिया में, उसके लिए थोड़ा सा इनको मुतहरिक कीजिए हमारे मीडिया सेक्शन को यहाँ पे, और ना सिर्फ यहाँ यूके में बल्कि दूसरे कंट्री में। बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है कि आपने इनके बारे में अच्छे अल्फाज कहे हैं, और मुझे इसकी बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है सिर्फ इन्हीं की नहीं है, इन्हीं की नहीं होनी चाहिए, आप सबकी है जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, बल्कि आपकी ज़्यादा है। मीडिया के अंदर मुतहर्रिक होना और इसमें इस सारे मामले को हरकत में लेके आना, ये यकीनन आप बेहतर तौर पे इसको अंजाम दे सकते हैं। इसमें सफ़ीर साहब की तरफ से कोई मदद दरकार हो तो वो हर तरह से हाजिर हैं, और मैं इनको बल्कि ये कहूँगा कि आपसे मुलाकात करें, बैठें, तबादला ख्याल करें
کہ اس سلسلے میں کیا کچھ کرنا چاہیے, کیا اقدامات لینے چاہیے. اور یہ میٹنگ سفیر صاحب آپ سے اگلے 3-4 دنوں میں کر لیں گے. یہ میٹنگ پوچھیں گے آپ سے, آپ کی رائے لیں گے, مشورہ کریں گے آپ سے کہ جناب آپ بتائیے کہ ہم اپنا میڈیا میں ساری چیز کو اجاگر کرنے کے لیے اور بہتر طور پہ پریزنٹ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہماری ہونی چاہیے. آپ اچھی رائے دیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم ان کی طرف سے اور پھر حکومت پاکستان کی طرف سے اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہماری جو جتنے بھی ہمارے ملک سے باہر جو ہمارے مشنز ہیں, ہم نے یہ ٹاسک ان کو دیا ہے. مبین صاحب صاحب میرا تعلق ایک ایسے روزنامہ سے ہے جو یہاں برطانیہ میں کشمیریوں کا ایک نمائندہ اخبار سمجھا جاتا ہے. فیڈ بیک آپ کے UNO کے دورے کا بہت اچھا آیا, جس پر آپ کا شکریہ تو بہرحال بنتا ہے. میں آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کا مرکز میں اقتدار آئے تقریباً 4 سال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزاد کشمیر میں بھی سرخروئی دی, تو آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے مستقبل میں آپ کون سے اچھے ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے لیے ان کی ٹائز اپنے ہوم لینڈ سے مزید مضبوط ہو سکے. آزاد کشمیر میں جو اس وقت بجٹ ہے ترقیاتی, اس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں. اس بجٹ کے علاوہ ایسے منصوبے ہیں جس کے لیے ہم فیڈرل گورنمنٹ کی بھرپور انشاءاللہ مدد کرے گی. سب سے زیادہ جو توجہ کے لائق ہے آزاد کشمیر میں جو معاملات, وہ ہیں انفراسٹرکچر, سڑکیں, اور جو سڑکیں آلریڈی بنی ہوئی ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ان کو درست کرنا, ان کو ٹھیک کرنا, بحال کرنا, پھر نئی سڑکوں کو بنانا, یہ ہے. اور پھر ہیلتھ کیئر, یعنی وہاں ہسپتال بہت دور ہیں. لوگوں کو گاؤں سے اپنا چارپائیوں پہ لوگ لٹا کے بیماروں کو لے کے آتے ہیں نیچے, بسوں میں آ کے بیٹھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ دوسرے کسی بڑے مظفر آباد شہر تک جاتے ہیں, یا مظفر آباد کی بجائے اسلام آباد جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے. تو بہت سارے لوگوں کو اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, کئی جانیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں اتنے سفر میں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ہر چپے چپے پہ میڈیکل فیسلٹیز اور ہیلتھ کیئر فیسلٹیز وہاں پہ ہونی چاہیے. اور پھر آزاد کشمیر ماشاءاللہ ویسے بھی اس کی جو تعلیم, شرح تعلیم جو ہے وہ پاکستان کی شرح تعلیم سے بہتر ہے. تو لیکن ہم بچیوں کے اسکولوں کی طرف زیادہ توجہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں, لڑکیوں کے اسکولوں کی طرف. اور پھر آزاد کشمیر میں ہم انشاءاللہ یونیورسٹیاں بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. اور یہ کام ہم میرے پورے ایجنڈے میں ہے, جس کو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ بننے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے ڈسکس کیا ہے. اور میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اگلے کچھ ہفتوں میں آزاد کشمیر مظفر آباد جاؤں گا, ایک دن پورا وہاں پہ صرف کروں گا. پورے اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے اوپر ہم ایک جو ہے پروگرام کے اوپر ہم وہاں پہ بحث کریں گے, اس کو فائنلائز کریں گے. بڑے بڑے جو منصوبے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم فیصلے کریں گے, اور اس کو پھر ہم لانچ کریں گے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے. تو حضور یہ ہمارا ماشاءاللہ آزاد کشمیر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, اس مینڈیٹ کو ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. صاحب سی پیک کا منصوبہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک جو ہے منصوبہ چل رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو بنگلہ دیش اور افغانستان کے ساتھ مل کر جو بلاک بنا رہا ہے, یہ اس منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے ہے؟ چونکہ اس وقت جو ہے وہ انڈین فورسز بھی جو بارڈر کے اوپر آ رہی ہیں, یہ جو کشمیر میں واقعہ ہوا, کیا آپ سمجھتے ہیں اسی بات کا تسلسل ہے کہ اس منصوبے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں انڈیا؟ اللہ تعالیٰ سی پیک کو نظر بد سے بچائے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بلوچستان بھی ایک مرکز ہے سی پیک کے منصوبوں کا, تو وہ کھٹکتا ہے جو اس طرح کے عزائم رکھنے والے لوگوں کے دلوں میں بلوچستان کی ترقی کھٹکتی ہے. بلوچستان میں ماشاءاللہ سڑکوں کا ایک جال بچھ رہا ہے,
गवादर एयरपोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बन रहा है, बिजली के मंसूबे वहाँ पे लग रहे हैं और साफ पीने का पानी वहाँ पे इंशाल्लाह आ रहा है। बेहतरीन एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट वहाँ पे बन रही है और यूनिवर्सिटी वहाँ पे बन रही है। तो ये मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो तरक्याती जो मंसूबे हैं, कभी बलूचिस्तान के अंदर जो काम करने वाले हैं, माजी में जो चंद साल पहले तक किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं, जो आज हुकूमत कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और चप्पे चप्पे पे सड़कें बनने, गवादर को हम इंशाल्लाह कुंजराब के साथ मिलाने का हमारा प्रोग्राम और एजेंडा है और फिर बलूचिस्तान को हम सेंट्रल एशिया के साथ मिलाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मंसूबे यकीनन जो पाकिस्तान के खिलाफ जो अज़ाइम रखते हैं लोग, उनको नहीं भाते और उनको ये हजम नहीं होते। बहरहाल इसलिए मैंने कहा कि अल्लाह ताला बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को सी पैक को नजर बद से बचाए। थैंक यू। जरदारी साहब से मिलने का कुछ इरादा है इस तनाजुर में कि पीपल्स पार्टी के दो धड़े, एक मुस्लिम लीग के खिलाफ है और एक आपके हक में बयान देता है, तो आप क्या समझते हैं इस तनाजुर में जरदारी साहब से मिलने का कोई इरादा है, चूँकि आजकल वो यहीं पे। थैंक यू वेरी मच। मैं हम देखें मुलाकात तो हमारी जो आपस में जो सियासी पार्टियां हैं, तबादला ख्याल होता रहना चाहिए, उसमें क्या बुराई है, होता रहना चाहिए और इंशाल्लाह होता रहेगा। हम एक अच्छी जमहूरी रवायात के अलमबरदार हैं। जरदारी साहब इज्जत के साथ रुखसत हुए, हमें खुशी है इस बात की। उनकी गवर्नमेंट जब थी तो हमने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की कि हम गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें और आज भी इंशाल्लाह हम एक सबको साथ लेके चलने के कायल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन के लुटन एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक उनका यह कहना था कि पाकिस्तान का एक जिम्मेदाराना किरदार रहा है हमेशा से। हिंदुस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कश्मीरियों पर जुल्म ढाए हैं, 108 कश्मीरी शहीद कर दिए गए, 150 अफराद बेनाई से महरूम कर दिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ बर्बरियत है। उड़ी कैंप से इस जुल्म को जोड़ते हुए उनका यह कहना था कि हमला कश्मीरियों का रद्द अमल भी हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 12 घंटे में पाकिस्तान पर तमाम इल्जाम धर देना ये सरासर जाती होगी। उनका यह कहना था कि क्या जो कश्मीरी शहीद हुए उनके अजीज़ वकार उधर मौजूद नहीं है, क्या उनकी जानिब से यह रद्द-ए-अमल नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान पर इल्जाम क्यों लगाया गया है। साथ साथ उनका यह कहना था कि अगर पाकिस्तान पर इल्जाम भारत लगा रहा है तो सबसे पहले कश्मीर में उसको अपने किरदार को देखना ज्यादा जरूरी होगा।